Hello everyone, I am D. Shah, welcoming you to this digital platform. Today I am going to take English of class 8, Honeydew, and the topic is a visit to Cambridge. I have already taught you first and second part of this lesson. Today I am going to teach you part 3 of this lesson. So, I welcome you once again on this digital platform. I will move on to the first slide, a visit to Cambridge. So, my dear students, this is the writer seated over here. He is sitting on his wheelchair, and as we have discussed before, the writer Firdaus Kanga is a disabled person, as well as Stephen Hawking, the great scientist whom we were discussing in the last two parts, part 1 and part 2. He is a great scientist and he is also disabled. Firdaus Kanga, the writer, he goes to London in Cambridge to meet Stephen Hawking, the great scientist, as he is very much impressed by him. He has a desire to meet Stephen Hawking, who is famous for so many scientific discoveries, and he is just named after Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton was also a great scientist, and Stephen Hawking is compared to Sir Isaac Newton. And this is how Firdaus Kanga, being disabled, he moves a long way from India to London to meet him, and he goes in a wheelchair, and there he meets Stephen Hawking, and he tells many things about Stephen Hawking in this. In the last two parts we have discussed how Stephen Hawking is such a nice personality, such a nice person, who meets Firdaus Kanga, who gives time to Firdaus Kanga, to the author, and both of them they talk on different subjects, different topics, and how Firdaus Kanga describes about Stephen Hawking. He describes Stephen Hawking to be a still photograph, means Stephen Hawking is a personality just like a still photograph, because his fingers are not quick, very slow. His fingers doesn't work properly. It has become numb. The fingers have become numb. And Stephen Hawking uses the computer voice to reply to any question. And the same case is with Firdaus Kanga also. He also uses the button, presses the button, and the voice comes out from the computer machine. In this way, both of them communicate with each other, and they spend some time together. So, let us see what happens in the next slide. Okay. So, here Firdaus Kanga is describing, he is speaking about Stephen Hawking, that is Stephen Hawking is such a personality as if
his pictures, if they are printed in the magazines or newspapers, it would look three-dimensional, 3D picture, just like that. So he seems to be like a statue. Then you see the head. Twisted sideways into a slump. तो यहां पर फिरदौस कहंगा जो है स्टीफन हॉकिंग के बारे में बात बताते हैं कि किस प्रकार उनका हेड जो है ऐसे ट्विस्ट हो गया, टेढ़ा हो गया है ऐसे करके, ट्विस्टेड साइडवेज, इस प्रकार से इनटू साइडवेज ये हुआ, ट्विस्टेड साइडवेज इनटू स्लम्प मतलब लटक गया है, ओके, कोलैप्स हो गया है उनका सर. The torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. कह रहे हैं कि ये जो उनका जो कंधा है, कंधा वो श्रंक हो गया, कोलैप्स हो गया है, सिंक हो गया है, ठीक है, इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और पेल हल्का कलर के, मतलब डीप कलर नहीं, हल्के कलर के ब्लू शर्ट पहने हुए हैं स्टीफन हॉकिंग, और हल्का ब्लू कलर का शर्ट पहने, इसीलिए कहा गया पेल ब्लू शर्ट. द वेस्टेड लेग्स, उनके जो पैर है खराब हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, बिकॉज ही हैज सफर्ड फ्रॉम दैट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी. ओके, you look at his eyes which can speak, और उनका वेस्टेड लेग्स है क्योंकि पैरालिसिस, ये सफर फ्रॉम पैरालिसिस, उनका पैर काम नहीं करता है, द लेग्स हैव बिकम नम एंड डल. और उसकी आंखों की तरफ देखोगे, जैसे उनकी आंखें देखने से ऐसा लगता है, स्टीफन हॉकिंग की आंखों को देखने से लगता है जैसे कुछ कह रहे हैं, आंखों से कुछ बोल रहे हैं, स्टिल एकदम शांत आंख है, आंखों की मूवमेंट नहीं है, एकदम स्टिल फोटोग्राफ के जैसे आंखें भी है, एकदम स्टैचू की भांति. एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट. और ही इज सच अ पर्सन, स्टीफन हॉकिंग, इफ एनीबडी वुड लुक टुवर्ड्स हिम, हिज आईज वुड स्पीक. Stephen Hawking's eyes would speak, and you will see that his eyes are something huge, something big, which wants to speak something urgently. तो उनकी आंखें कुछ ऐसा संकेत करते हैं, स्टीफन हॉकिंग की आंखें ऐसा लगता है कि कितने बड़े हैं और कितने अर्जेंट है, कुछ अर्जेंट कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अर्जेंट इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं. इट इज हार्ड टू टेल व्हाट, और बहुत मुश्किल है क्या कहना चाहते हैं. स्टीफन हॉकिंग की नजर, जो आंखें हैं, स्टिल है, बहुत शांत है, और ऐसा लगता है कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये कहना मुश्किल है. इट इज हार्ड टू टेल व्हाट. But you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. लेकिन आप तो हिल जाओगे, you will be moved. It will affect you. क्यों? क्योंकि तुमने कुछ देखा है जो कि तुमने कभी सोचा नहीं कि ऐसा भी देखने को मिलेगा, ऐसी आंखें देखने को मिलेंगी, ऐसा शरीर देखने को मिलेगा, ऐसा डिसेबिलिटी देखने को मिलेगा, जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं. सो देखिए ग्लॉसरी में टॉर्सो मीन्स अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो होता है उसको बोलते हैं टॉर्सो, कंधे को कह सकते हैं. और स्लम्प मीन्स कोलैप्स, झुक जाना. ठीक है, नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड.
Before you, like a lantern whose walls are worn, so thin you glimpse only the light inside. तो यहाँ जो लेखक हैं, ऑथर हैं फिरदौस कहंगा, ये स्टीफन हॉकिंग के बारे में कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने वो कैसे दिखेंगे। मान लो तुम उसके सामने आ जाओ, स्टीफन हॉकिंग सामने, तो स्टीफन हॉकिंग ऐसे लग रहे थे जैसे कि लैंटर्न पे जैसे लटका होता है, लैंटर्न के बाहर में जो शीशा होता है, ठीक है, कुछ वॉल्स और वोन, जो कि शीशा गंदा हो गया। लैंटर्न में एक शीशा लगा हुआ रहता है ना, वो काला हो गया है, और थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड, सिर्फ उसके अंदर लाइट दिखाई देता है लैंटर्न में। जब लालटेन के जो शीशा जब गंदा हो जाता है तो तुम उसमें कुछ थोड़ा सा एक लाइट देख सकते हो, स्मॉल लाइट इज द incandescence of a man. Incandescence का मतलब हुआ इनर ग्लो और लाइट, और वो जो अंदर जो दिखाई देता है लालटेन के शीशे के अंदर, गंदे शीशे के अंदर, वही क्या है, दैट इज द इनर ग्लो और लाइट ऑफ ए मैन। वही चीज है उनमें। बाहर से वो डिसेबल्ड दिख रहे हैं, फिजिकली वीक दिख रहे हैं, कि अंदर से लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है। इसलिए तो उन्होंने इतना नाम कमाया, इतने सारे डिस्कवरीज किए, इतने बड़े साइंटिस्ट बने स्टीफन हॉकिंग। द बॉडी ऑलमोस्ट irrelevant, exist only like a case made of shadows. उनका शरीर जो है बहुत कमजोर है, इट्स वेरी फीबल, वेरी वीक, जिसका कोई रेलिवेंट नहीं है, विच इज इररेलेवेंट, एकदम केस का जैसा है, खोखले का जैसा, खोखला हो गया है, केस का जैसा, कोई कवर का जैसा होता है, केस का जैसा होता है, जो कि मेड ऑफ शैडो, जो कि परछाइयों से बना हुआ है, ऐसा उनका शरीर लगता है देखने से। सो दैट आई नो बिलीवर इन इटर्नल सोल्स, कह रहे हैं लेखक कि मैं जो कि इमोर्टल सोल्स में बिलीव नहीं करता हूं। इटर्नल सोल्स का मतलब हुआ इमोर्टल सोल्स, मैं बिलीव नहीं करता हूं। नो दैट दिस इज व्हाट ईच ऑफ अस इज, और हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर के कैसे हैं हम लोग, और हमें जीवन मिली है तो मृत्यु भी मिलेगी एक दिन, हम सब जानते हैं। whoever is born is supposed to die one day। तो हमें सब ये सब मालूम है कि हमारा आत्मा के बारे में मालूम है, हमारे आत्मा क्या करती है। एक शरीर खत्म हो जाती है लेकिन आत्मा खत्म नहीं होती है, वही बात कहना चाहते हैं इस लाइन में, इन लाइंस में। एवरीथिंग एल्स एन एक्सेसरी, और चमक धमक जो देखते हो, डेकोरेटिव, इतना डेकोरेटिव शरीर दिखाई देता है। एक्सेसरी का मतलब नॉट एक्सेसरी बट एक्स्ट्रा, दो डेकोरेटिव, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। बोलते हैं ना संसार नश्वर और क्षणभंगुर है, तो लोगों की जिंदगी ऐसे ही है। Whoever is born is supposed to die, और हम सज धज के जहाँ तहाँ जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, हम बाहर निकलते हैं, यूनिफॉर्म मेंटेन करते हैं अच्छा दिखने के लिए, लेकिन एक न एक दिन ये शरीर कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, ये लेखक कहना चाहते हैं। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. तो फिरदौस कहंगा जो राइटर है, उन्होंने पहले उनसे पूछा था, एक सवाल पूछी थी उन्होंने स्टीफन हॉकिंग से कि आपको क्या लगता है अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। अगर कोई आदमी फिजिकली डिसेबल्ड हो जाता है, अपाहिज हो जाता है या डिफरेंटली एबल्ड हो जाता है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये स्टीफन हॉकिंग से सवाल करते हैं फिरदौस कहंगा, तो जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं स्टीफन हॉकिंग? आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड।
तो स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी अच्छा होता है। कोई अगर अपाहिज हो, अपंग हो, हैंडीकैप्ड हो, फिजिकली डिसेबल्ड हो, तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता उसमें कुछ अच्छा चीज होता है, कुछ अच्छा कुछ होता है। अपाहिज होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सारे जीवन कष्ट वाली जीवन रहती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अपाहिज होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, अपाहिज में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जिंदगी तो वैसे ही हो गई। यही बात कर रहे हैं। आई थिंक आई सेड, और ये तब ये जवाब देते हैं फिरदौस कहंगा कि मुझे लगता है यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं उसकी इनकी बातों को सुनकर स्टीफन हॉकिंग के कि अपाहिज होना अच्छी बात नहीं है। जब बोलते हैं तो फिरदौस कहंगा बोलते हैं कि आप तो अपाहिज हैं, हम भी अपाहिज हैं, इससे हम लोग आपको जरूर पता चल जाता होगा, ये जरूर पता चल जाता होगा कि लोगों में कितनी दया है। मतलब हम जैसे अपाहिज को देखकर लोग कितना मन में वैसा सिंपैथी फील करते हैं, काइंडनेस फील करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। Yes, he said it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection. और वो बोले हाँ बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, लेकिन उनका जो कंप्यूटर वॉइस निकल रहा था उसमें कुछ कंपन हो रहा था, जो कि जिसमें आवाज जो निकल रहे थे, इन्फ्लेक्शन का मतलब था राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग, उतार चढ़ाव हो रहा था आवाज में, अप एंड डाउन हो रहा था जो बात कर रहे थे। कंप्यूटर वॉइस जो आ रहा था ना, क्लियर नहीं आ रहा था। नो शेड्स और टोन, कह रहे हैं कि बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और एक बहुत ही डिसएडवांटेज है इस वॉइस सिंथेसाइजर का, जो कि ये सही से आवाज नहीं निकलता है। नो शेड्स और टोन्स, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me। और यहां पर उनका वॉइस सिंथेसाइजर जो ये मशीन है जो कि वो उनका बोला हुआ वॉइस को निकालता है ऊंची आवाज में, वो काम नहीं कर रहा था। और फिर ये सोचते हैं मन ही मन फिरदौस कहंगा कि वो किस प्रकार से इनकी बातों से सहमत हो गए। फिरदौस कहंगा के बातों से वो सहमत हो जाता है स्टीफन हॉकिंग, और बहुत ही खुशी से, विथ इंटरेस्ट। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Every time I shifted in my chair or turned my wrist towards the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. जब भी वो चेयर में शिफ्ट करते थे, फिरदौस कहंगा कह रहे हैं, जब भी मैं चेयर में शिफ्ट करता था और मुड़ता था अपने रिस्ट वॉच देखने के लिए, ऐसे अपने सर को मोड़ता था टुवर्ड्स टाइम, तो कह रहे हैं कि मैं हर एक मिनट का 30 मिनट जो समय मिला है इनको उनसे मिलने के लिए, स्टीफन हॉकिंग से, हर पल का ये फायदा उठाना चाहते थे। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट। वो चाहते थे हर पल, एक एक मिनट, हाँ, यूजफुल हो उनका। फिरदौस कहंगा जो उनसे मिल रहे हैं, एक एक मिनट उनका यूजफुल हो, बेकार ना हो, और जानकारियां मिलते रहे। I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body। और इन्हें बहुत ही शांति मिला, सुख मिला। फिरदौस कहंगा को कह रहे हैं मुझे बहुत शांति मिली। एंड एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन मतलब जॉय एंड हैप्पीनेस, मुझे बहुत खुशी मिली, शांति मिली।
जिस प्रकार उनका शरीर उस वक्त साथ दे रहा था, कमजोर शरीर था, फिर भी वो आगे बढ़ते रहे, बातें करते रहे स्टीफन हॉकिंग से। हाउ लिटिल इट मैटर देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। और फिरदौस कहंगा कह रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो वॉक कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, या खड़े भी हो सकेंगे कि नहीं, इससे इनको फिक्र नहीं है। ये अपने डिसेबिलिटी का बारे में नहीं सोचते हैं। फिरदौस कहंगा उनका सोचना है कि हमें अपने जीवन में कुछ करना है, और वही सोच स्टीफन हॉकिंग का भी है। ठीक है, दैट्स व्हाई बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्संस। क्यों? क्योंकि उनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज है। वो डिसेबल्ड है, फिर भी उनमें क्वालिटीज है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन का मतलब होता है जॉय एंड हैप्पीनेस। देख लीजिए प्लीज। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। I told him how he had been an inspiration beyond Klitsch for me and surely for others. Did that thought help him? कह रहे हैं फिरदौस कहंगा कि उन्हें मैं बताया कि किस प्रकार स्टीफन हॉकिंग इनके लिए एक इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है, बियॉन्ड क्लिच, उनकी आइडिया के बावजूद, उनकी सोच के बावजूद। क्लिच का मतलब होता है फ्रेज और आइडिया यूज सो ऑफन दैट इट लूजेज इट्स मीनिंग। एंड श्योरली फॉर अदर्स, और दूसरे के लिए भी वो इंस्पिरेशन है। कह रहे हैं फिरदौस कहंगा कि स्टीफन हॉकिंग इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, वो हमारे लिए भी एक प्रेरणा है, और लोगों के लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी। डिड दैट थॉट हेल्प हिम? और इनका जो सोच था, क्या स्टीफन हॉकिंग को मदद किया? इनका जो सोच है कि वो एक इंस्पिरेशनल पर्सन है। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट स्लाइड। नो ही सेड, तो इनकी बातों को सुना स्टीफन हॉकिंग, और फिरदौस कहंगा ने बोला कि आप मेरे इंस्पिरेशन हैं। तो ये बोल रहे हैं नो, नहीं। स्टीफन हॉकिंग बोले नहीं, वो अपना श्रेय नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी का श्रेय लेना नहीं चाहते हैं, अपने मेहनत और लगन से यहां तक पहुंचे हैं। एंड आई थॉट हाउ फूलिश आई वॉज टू आस्क, और बाद में फिरदौस कहंगा सोचते हैं कि मैं कितना बेवकूफ हूं कि ये ऐसा सवाल पूछा मैंने। When your body is a claustrophobic, claustrophobic का मतलब होता है claustrophobic room, मतलब and the walls, claustrophobic room का मतलब होता है जब बॉडी काम नहीं करता है, ठीक है, सही से कमजोर हो जाता है। एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर, हमारा जो शरीर कमजोर दिन पर दिन होते जा रहा है, हड्डियां कमजोर हो जा रहे हैं, ठीक है, मांसपेशियां कमजोर होते जा रहे हैं, उसी को कहा गया है। डे बाय डे, नैरोअर डे बाय डे। इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विथ एडमिरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल। तो कह रहे हैं इन लाइन्स में कि हमारा जब शरीर ऐसा डिसेबल्ड हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और दिन प्रतिदिन हमारा शरीर कमजोर ही होते जाता है, ठीक है, हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होता है यह जानना कि ऐसे भी लोग हैं बाहर में जो कि हमारे ऊपर हंसते होंगे, जो कि डिसेबल्ड लोगों पर हंसते हैं, फिजिकली कमजोर, फिजिकली वीक लोगों पर कुछ लोग हैं जो कि हंसते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं को जो कि फिजिकली कमजोर लोग हैं उस पर हंसते हैं। देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विथ एडमिरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल। और ऐसे भी लोग हैं जो कि मुस्कुराते रहेंगे प्रशंसा में किसी को देखने के लिए, मतलब अपाहिज को भी देखने के लिए कि वो अभी तक जीवित हैं। इतना कमजोर अपाहिज होते हुए भी अभी तक जीवित है, तो लोगों की धारणा ऐसा भी हो जाती है,
और मुस्कुराकर यह जानना चाहते हैं अपने मुस्कुराहट के साथ, खुशी के साथ, ठीक है। तो कुछ लोग खुश भी होते हैं, अरे अपाहिज होने के बाद भी हाँ इतना दिन वो जिंदा है, भगवान करे और लंबी उम्र मिले उनकी। और कोई कोई चौंक जाते हैं, अरे ये तो अपाहिज है, ही इज फिजिकली डिसेबल्ड, अभी तक जिंदा है, चौंक जाते हैं कि उनका सोच ऐसा है कि इतना दिन जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे इस प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। तो लेखक वही बता रहे हैं। तो क्लॉस्ट्रोफोबिक का मतलब होता है वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग। क्लॉस्ट्रोफोबिया इज एब्नॉर्मल फियर ऑफ बीइंग इन एन एनक्लोज्ड स्पेस। मतलब डर हो जाता है लोगों में, एक डर रहता है। जो अपाहिज हो जाता है उसको डर भी रहता है कि लोग क्या सोचते होंगे उसके बारे में, वो हंसते भी होंगे, अरे ये तो अपाहिज है। वही बात मैं जो कह रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बाद में ये सवाल करते हैं फिरदौस कहंगा स्टीफन हॉकिंग से, इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव टू डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। वो कह रहे हैं ऐसा कोई सुझाव है, स्टीफन हॉकिंग से पूछ रहे हैं फिरदौस कहंगा, जो कि आप डिसेबल्ड पीपल को, डिफरेंटली एबल्ड पीपल को, हैंडीकैप पीपल को आप दे सकते हैं, वैसा कुछ एडवाइस जिससे कि उनका जीवन और बेहतर हो जाए। तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं स्टीफन हॉकिंग, देखिए, दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। तो दोनों में कम्युनिकेशन होता है, फिरदौस कहंगा और स्टीफन हॉकिंग में। और स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं कि अपाहिज जो लोग हैं, जो जिसको फिजिकली डिसेबल कहते हैं या डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, उन लोगों को अपने काम पर, वो जिस क्षेत्र में अच्छे हैं, हर कोई एक क्वालिटी के साथ जन्म हुआ है, उसमें गुण के साथ जन्म हुआ है। हर कोई में अपाहिज हो, अंधा हो, बहरा हो, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होंगे। तो कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, उसमें जो क्वालिटीज उसमें मौजूद है, जो कार्य में वो अच्छा है, बढ़िया है, उसी पर उसको कंसंट्रेट करना चाहिए, उसी पर ध्यान देना चाहिए। कंसंट्रेट मतलब ध्यान देना चाहिए। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कुछ खेल होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि डिसेबल्ड ओलंपिक्स होते हैं, ये सब बिल्कुल ये समय की बर्बादी है। दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, ये सब कुछ फायदा नहीं डिसेबल्ड ओलंपिक्स वगैरह के सब करवाकर। आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर ये जवाब देते हैं फिरदौस कहंगा, आई नो वॉट यू मीन, आई रिमेंबर्ड the years I had spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I had unstrummed it one night. तो पिछला स्लाइड में आपने देखा कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसे जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो ये फिर जवाब देते हैं कि मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे याद है कि मैंने कितने समय बिताया, एक स्पेनिश गिटार बजाने के लिए कोशिश किया मेरी बचपन में, और मेरे से भी हाइट में लंबा था स्पेनिश गिटार, और बहुत खुशी से हाँ एक रात को हमने उसके स्ट्रिंग्स तोड़ दिए, रिमूव कर दिए, मैंने मतलब फेल हो गया बजाने में। द हाफ आवर वॉज अप,
I think I have annoyed you enough, I said grinning. और उसके बाद ये सब बातचीत होती रहती है दोनों में, और आधा घंटा हो जाता है। फिरदौस कंगा को लगता है कि आधा घंटा हो चुका है। वो बोलते हैं कि आई थिंक आई हैव एनॉयड यू एनफ, कहते हैं आधा घंटा जब खत्म हो जाता है, फिरदौस कंगा बोलते हैं स्टीफन हॉकिंग से कि हमें लगता है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी, आपके आधा घंटा मैंने ले लिया। वो बोले कि वो हंसते हुए बोले, आई सेड ग्रीनिंग, मतलब फिरदौस कंगा हंसते हुए मुस्कुराते हुए ये बातें कही। आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ और स्लाइड्स हैं। थैंक यू फॉर, फिर फिरदौस कंगा बोलते हैं थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच टाइम, यही बात कहना चाहते होंगे। फिरदौस कंगा बोल रहे हैं कि मुझे बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना समय दिया। स्टे, आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। तब फिरदौस कंगा बोलते हैं रुको, आधा घंटा हो गया, कोई बात नहीं, रुको, वेटेड, और ये इंतजार भी किए फिरदौस कंगा, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग ने उनको बोला कि इंतजार करो, थोड़ा देर रुको, हैव सम टी, थोड़ा चाय पियो, मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाना चाहता हूं। स्टीफन हॉकिंग बोले फिरदौस कंगा को कि तुम इतना दूर आए हो हमसे मिलने, तो तुम चाय भी पियो मेरे साथ, और चलो मैं तुम्हें अपना गार्डन भी दिखाता हूं। ग्लीफुली का मतलब वेरी हैप्पी, अनस्ट्रिंग मतलब रिमूव द स्ट्रिंग्स ऑफ। आगे बढ़ते हैं। फिर उसको गार्डन में ले जाते हैं, स्टीफन हॉकिंग व्हील चेयर पर गार्डन में ले जाते हैं, वो भी व्हील चेयर पर जाते हैं, स्टीफन हॉकिंग भी। द गार्डन वॉज एज बिग एज ए पार्क, बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, रंबलिंग अलोंग इन हिज motorized wheelchair while I dodged to keep out of the way। और गार्डन बहुत बड़ा था, एक पार्क का जैसा था, और स्टीफन हॉकिंग जो है उनको हर इंच, गार्डन का हर एक एक इंच दिखाना चाहते थे। रंबलिंग मतलब मूविंग इन द व्हील चेयर, मेकिंग ए कंटिन्यूअस डीप रेजोनेंट साउंड आ रहा था, उनका व्हील चेयर का साउंड आ रहा था, मोटराइज्ड व्हील चेयर था। While I dodged to keep out of the way, और ये टाल रहे थे, वो टाल रहे थे। कौन? फिरदौस कंगा। We couldn't talk very much, और वो ज्यादा बात नहीं कर सके। The sun made him silent, और जो सूर्य की रोशनी जो पड़ रही थी उनके ऊपर, उससे उनको दिक्कत हो रहा था, जिससे कि वो शांत हो गए। The letters on his screen disappearing in the glare, और लेटर्स जो थे स्क्रीन पर वो दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि उस कंप्यूटर स्क्रीन पर सूर्य की रोशनी पड़ रहे थे उस गार्डन में, और स्क्रीन पर लेटर नहीं दिखाई दे रहे थे, जिसके कारण वो शांत हो गए। उनको दिखाई देते तब ना कुछ टाइप करते, पंचिंग करते, और वर्ड्स टाइप करते तो उस मशीन से निकलता वॉइस, मशीन वॉइस निकलता। तो रंबलिंग का मतलब होता है मेक ए कंटिन्यूअस डीप रेजोनेंट साउंड, डॉज का मतलब डिस्टॉर्टेड। आई विल मूव फॉरवर्ड, एक दो स्लाइड्स और होंगे। यस, वी हैव मोर 2 स्लाइड्स। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, एन आवर लेटर, एक घंटे बाद वो दोनों एक दूसरे से जुदा होने के लिए तैयार थे, मतलब ये रिटर्न करना चाहते थे, रिटर्न वापस होना चाहते थे फिरदौस कंगा, और वो लोग एक जगह थे, आमने सामने थे अपने अपने व्हील चेयर पर, और तैयार थे एक दूसरे से अलग होने के लिए। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, और फिरदौस कंगा कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी, इतने बड़े साइंटिस्ट से मैं मिला हूं स्टीफन हॉकिंग से, अब मैं उससे बिछड़ रहा हूं उनसे, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रही थी। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं उनको किस भी नहीं कर पा रहा था, उनको प्यार भी नहीं कर पा रहा था, और मैं रो भी नहीं पा रहा था। आई टच्ड हिज शोल्डर,